Good evening, friends. In this series, Basic Grammar for All and Competitive English for All competitive aspirants, we are continuing today with the non-finites, and today I'm going to talk about some useful application of participles. First of all, you ask, sir, what are participles? Participles, gerunds, and infinitives are the three kinds of non-finites. Yeah, I told earlier also that finites verb are always controlled by the number and persons of the subject, whereas non-finites are never controlled by number and person of the subject. Like you say, to walk is a good exercise. He wants to walk. Yes, he goes for a walk. So all these, I mean, in all the three sentences, to walk is a good exercise is here infinitive. Walking is a good exercise is a gerund, and he went on walking all the way. That is a participle. So the same verb can be used as infinitive in a different way and as a participle in a different way. So participles are vowel adjectives. They are verbs, but they are used as adjective. They qualify noun and pronoun. For participles are of three kinds: present participle verb plus ing, past participle v3, perfect participle having plus v3 or having plus been plus v3. I repeat, there are three kinds of participle: present participle verb plus ing, past participle v3, perfect participle having plus v3 or having plus been plus v3. One is in active form, another one is passive form. Let us see some of the examples. Why should we learn participles? That you ask. Sir, why should we learn participles? See, whenever you are willing to, synthesize your statement, whenever you are willing to combine your statements into a brief, because you have to write in limited words. Suppose you want to say in one sentence that मैंने खाना खाकर तब उसके बाद पढ़ाई की, तो आप दो सेंटेंस में इसको ऐसे बोलेंगे, आई टुक माई मील एंड देन आई सेट फॉर स्टडीज. तो पहला सेंटेंस हुआ आई टुक माई मील, सेकेंड सेंटेंस देन आई सेट फॉर स्टडीज. और वही चीज आप अगर पार्टिसिपल यूज करते हैं, देखिए कितना अच्छा है. हैविंग टेकन माई मील आई सेट फॉर स्टडीज. हैविंग टेकन परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया. हैविंग टेकन माई मील आई सेट फॉर स्टडीज. The two actions have been combined together and the sentence also looks beautiful. उसी तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि मैं सोचते हुए कि सब कुछ अच्छा ही जाएगा बेड पर चला गया. सो थिंकिंग ऑल वेल आई वेंट टू बेड. थिंकिंग ऑल वेल आई वेंट टू बेड. ये कितना बड़ा सेंटेंस है. मैं ये सोचता हुआ कि सब कुछ अच्छा ही जाएगा बेड पर चला गया, यानी सोने चला गया. सो थिंकिंग ऑल वेल I went to bed. How small this sentence is and what a big meaning it has. उसी तरह से और आ जाइए और भी देखिए. किसी ने गरीबी के कारण सुसाइड कर लिया. कोई आदमी गरीबी के कारण सुसाइड कर लिया, तो उसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? यदि आप पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो सेंटेंस विल बी ब्यूटिफुल. हैविंग और ड्रिवन बाय पॉवर्टी. सिंपल परफेक्ट पार्टिसिपल यूज ये कीजिए. पास्ट पार्टिसिपल v3 यूज कीजिए. ड्रिवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड. he committed suicide. Driven by poverty. Both the sentences are correct. Driven by poverty he committed suicide. और भी देखिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ कहाँ पर हो सकता है. दूसरा देखिए, ए ब्रोकन चेयर इज फॉर रिपेयर. ब्रोकन चेयर, कैसा चेयर? चेयर को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए तो एडजेक्टिव है. ए ब्रोकन चेयर इज फॉर रिपेयर. और आगे देखिए, यस वो अपने सबसे अच्छे मित्रों के द्वारा धोखा दिया गया, इसलिए वो लंच नहीं किया, लंच छोड़ दिया. हैविंग डिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड्स ही लेफ्ट द लंच. लंच ही छोड़ दिया. हैविंग डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लेफ्ट द लंच. अभी देखिए, जैसे आप कहना चाहते हैं कि मैं रिटन क्वालिफाई कर लिया हूँ, इसलिए मैं वाइवा के लिए बैठने वाला हूँ. तो हैविंग बीन सेलेक्टेड इन द रिटन एग्जाम आई हैव टू अपीयर नाउ फॉर द ओरल टेस्ट. क्या है, मैंने एक बार अपने टेक्स्ट का रिवीजन कर लिया, अब मुझे उसका ये समराइज करना है. रिवाइज्ड ऑल माय लेसन्स
I want to summarize them. I want to summarize. कितना सुंदर लगता है। तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे वह बाहर लड़ाई में हार कर अपना ये हिम्मत छोड़ दिया, तो हैविंग बीन डिफीटेड अगेन एंड अगेन इन द बैटल ही गिव अप द एफर्ट, वो अपने एफर्ट ही छोड़ दिया। हैविंग बीन डिफीटेड इन द बैटल अगेन एंड अगेन ही गिव अप द एफर्ट, वो एफर्ट को छोड़ दिया। इसी चीज को आप यदि दो सेंटेंस कहिए तो पहले आपको बोलना पड़ेगा he was defeated in the battle again and again. Second sentence, he gave up the effort. और इसी दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो कितना अच्छा होगा। Having been defeated again and again in the battle, he gave up the effort. He gave up the, और कॉमा बीच में रहेगा। तो सेंटेंस पार्टिसिपल्स के द्वारा बहुत ही अच्छा से बन जाता है, और आप इसको पार्टिसिपल्स का यूज करेंगे while you are combining ideas। और यही चीज हमको बताना है कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो आप ऐसे भी कंटिन्यूअस फॉर्म में भी यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि आज, देखिए आज संडे था इसलिए सारी दुकानें बंद थी। इट बीइंग संडे टुडे, बीइंग BEING प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट बीइंग संडे टुडे ऑल शॉप्स वर क्लोज। कितना सुंदर सेंटेंस है। देखिए इट बीइंग संडे टुडे ऑल शॉप्स आर क्लोज, वह घायल था इसलिए चल नहीं पाता था। Having been injured, he could not walk. Having been, having been crushed by a car, he was taken to hospital. He was taken to hospital. तो ये having been perfect participle या past participle का यूज हमेशा क्वेश्चन आंसर्स में भी करेंगे। जैसे देखिए आप जस्ट थिंक ऑफ दैट, आपको द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह का क्वेश्चन आंसर लिखना है कि जब ग्रैंड मदर और उसके जो नरेटर हैं जब वो शहर में रहने के लिए गए, उनको बुलाया गया, उसके बाद उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। तो इसको एक छोटा सा देखिए कितना पार्टिसिपल्स है। हैविंग बीन आस्क्ड टू लिव इन द सिटी, हैविंग बीन called for by their parents, having been called for by the parents to live in the city, a turning point came in their relationship. Having been taken to the city or having been asked to come to the city, a turning point came in their life. एक टर्निंग पॉइंट आया उनके रिलेशनशिप में, क्योंकि वो फिर वो स्कूल नहीं जा पाती थी। सी कुड नॉट accompany him to स्कूल। हाँ, अब इसी चीज को देखिए, क्योंकि वो नरेटर को एक इंग्लिश स्कूल में डाला गया इसलिए ग्रैंड मदर खुश नहीं थी इंग्लिश स्कूल से। The narrator being put in an English school, the grandmother was quite upset. The grandmother was quite upset, the narrator being put in an English school. Or the narrator being put in an English school, the grandmother was quite upset. The grandmother was quite upset. So this is the way you can beautify your expressions, and therefore participles can frequently be used in your day-to-day spoken English also. जैसे आपको ये कहना है कि मुझे बार बार समझाने के बाद भी वो गलती किया, तो हैविंग बीन आस्क्ड नॉट टू रिपीट हिज मिस्टेक, ही वेंट ऑन कमिटिंग मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक। हैविंग बीन वार्नड ऑफ हिज मिस्टेक्स, ही वेंट ऑन कमिटिंग मिस्टेक। हैविंग बीन cautioned about his mistakes, he went on committing his mistakes. So these are the beautiful sentences that you can use in your day-to-day conversation, and you can improve your spoken English. And that's what today I wanted to share with you. Thank you. Have a nice day.